पीएच कैलकुलेशंस कितना रहता है? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ऑलरेडी हम डिस्कस किए। देन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, then strong acid plus weak acid, then weak acid, then weak acid plus weak acid, then weak acid plus strong base, weak base आ गया, weak acid plus weak acid plus weak base, then weak acid plus strong base. कुछ कॉम्बिनेशन मिस हो गया, चेक करो बस इतना ही। Is there any other combination? Total 6 दिए हैं। So those many types are there. So one by one we will discuss. Right? So first strong acid. Strong acid के लिए first of all what are the strong acid which can 100% dissociate? Example HCl is there, H2SO4, HI, HNO3. These all are strong acids. Okay, इसके लिए pH के लिए फार्मूला क्या था? pH equal minus log H plus concentration. I am not giving definition, already you written definition. So even we solved some questions, just as a formality, one question or two questions you can solve. 0.01 m H2SO4 and 0.01 m HCl. pH values. कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉल्यूशन pH इक्वल माइनस लॉग H2SO4 को पहले H2SO4 के लिए क्या करना है? माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. यस, दिस इज द फार्मूला. सो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? 0.02 नॉर्मलिटी होगा. 0.02 normality. See here, simply you can take the normality. Just you write in the formula. You take the normality. Then अभी इधर क्या है आंसर? 2 into 10 power minus 2 I can write. Then minus log 2 minus log 10 power minus 2. एक्चुअली log a into b, log a plus log b, ये तो माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई किया. देन ये तो माइनस 2 इधर आ गया तो प्लस 2. 2 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3, योर आंसर 1.7. नेक्स्ट 0.01 mHCl का pH इक्वल माइनस log सीधा 10 पावर माइनस 2. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोसिएट होता है. ठीक है, दैट्स राइट. HCl का कंसंट्रेशन क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन भी वही होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएटेड. दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी कैन टेक. देन pH equal to 2. This is the answer here. pH equal to 1.7. सेम कंसंट्रेशन वाला दिया है
फिर भी H2SO4 का कंसंट्रेशन कम, pH वैल्यू कम हो गया. This is indicating that H2SO4 is the stronger than HCl. Yes, H plus ions it can donate more. No? That's why. ये तो strong acid है. Okay. Next, strong acid plus strong acid. तो फर्स्ट वाला हो गया अभी. Right. The second, have you written? Strong acid plus strong acid. HCl and H2SO4. ठीक है. इसका 0.1, इसका भी 0.1. It is 500 ml. This one also. ठीक है. ये 1500 ml. 500 ml. 500 ml. Now ये resultant solution का pH value क्या है? If you know the resultant solution concentration, then you can find pH. First you have to do concentration. You have to calculate concentration. Actually mole concept के अंदर आता है first chapter में. ठीक है? Same topic हम देखेंगे again. इसका H plus कितना होगा? H plus concentration here 0.1. इसका H plus concentration कितना होगा? 2H plus it can donate ना. So that means 0.1 into 2. ठीक है. अभी टोटल कंसंट्रेशन कितना है? टोटल H plus concentration इक्वल कितना हो गया? 0.1 plus 0.2 that equal 0.3. ठीक है. H plus concentration. तो वॉल्यूम भी दे देना एक मिनट. See, whenever two acids are there, the resultant concentration का फॉर्मूला क्या था? N normality we had to do. See, here both it's monoprotic है तो molarity you can do. But whenever one is diprotic and one is monoprotic, two different are there. In that case, you have to take normality only. Okay, normality is always better. ठीक है. HCl टाइम में भी नॉर्मलिटी ले लो क्योंकि नॉर्मलिटी मोलारिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो HCl के लिए. सो नॉर्मलिटी इज द बेस्ट. ठीक है. चलो अभी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इक्वल फार्मूला इज N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. ये तो फर्स्ट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो उसके बाद मोलारिटी नॉर्मलिटी करते हैं. N1 V1 फर्स्ट इसका ये तो मोलारिटी बोल दिया था. ठीक है. इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? 0.2 बस n. अप्लाई दैट 0.1 into 500 that means 50 plus 0.2 into means 2 into 50 that means 100 upon 500 plus 500 1000. अभी कितना हो गया? 100 plus 150 by 1000 0 15 by 100 that means 0.15. ठीक है. रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ये ऐसा नहीं लेना. ये नहीं लेना. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट कंसंट्रेशन. राइट. अभी रिजल्टेंट कंसंट्रेशन हो गया 0.15. इस मच करेक्ट. यस. 500 and 500 into 0.1 50. ये 0.2 था. 500 that means 100 by 500 plus 500. ये फार्मूला याद रखना. ये मोल कंसेप्ट में आया था पर. Then 0.15. Now I am asking you the pH. pH equal minus log H plus concentration. H plus concentration कितना लेना है? Same as we listed. So I can write it this one as 1.5 into 10 power
-1 लिख सकते, ठीक है। नाउ इसको माइनस log 1.5 माइनस log 10 पावर -1, इसमें क्या होगा अभी, ये तो 10 पावर -1 है, इधर आ गए तो 1 है, 1 माइनस log 1.5। I know the value log 2 equal to 0.3, log 1.5 equal to maybe होगा 0.2 something, ठीक है, approximate value, you can see the logarithm. So here the value is 0.3 से कम होगा, that is approximately 0.2 or 2.5 कुछ होगा, ठीक है। I'm taking 0.25, उस टाइम में क्या होगा, that means 0.75, yes, इतना ही है। Are you getting? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। See, मोल कॉन्सेप्ट एंड दिस इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर्स, दो चैप्टर्स को मैं मिक्स कर सकता है। आई एम रिकॉलिंग यू ऑल दिस फॉर्मूलास, राइट? You may get doubt, sir, pH वैल्यू तो 1 से 14 सुना है ना, 1 से भी कम आ गया। Of course, that is the pH scale is applicable for weak, not weak acid, the diluted acids. हम concentration ज्यादा लिया, हम 0.01 लेना था, तब 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, that is the thing. So concentrated acids को 1 से भी कम रहता है, 0 less than 0, but generally representation the pH value is for diluted acids. So next, strong acid, then strong acid and weak, strong base, strong base. इस टाइम में क्या है, इस टाइम में फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, N1V1 minus N2V2 मॉड्यूलस, ये हो, ठीक है। अभी HCl तो लिया मैं, दूसरा आई एम टेकिंग हियर NaOH, NaOH। अभी क्या लेना है NaOH में, मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, NaOH 0.1 500 ml, ठीक है। दूसरा तो केस 1, केस 2 0.1 1000 ml, केस 3 सेम है 0.1 100 ml, ठीक है। इस टाइम में क्या होगा, फर्स्ट केस में सेम कंसंट्रेशन सेम वॉल्यूम, मतलब न्यूट्रल, therefore pH value will be 7, pH value will be 7। नेक्स्ट इस केस में 0.1 0.1, तो ये तो ज्यादा है, सो लिटिल बेसिक, ठीक है। ये तो क्या होगा, एसिडिक होगा, तो देखते हैं। अभी इस टाइम में अप्लाई द फार्मूला, सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। N1V1, ये सब N1V1 N2V2 ऐसे समझो, 500 into 0.1 that means 50, ये बेस है इसलिए तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.1 into 1000 ml, 1000 ml मीन्स तो 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 1000 प्लस 500 1500। अभी आंसर हमको -50/1500 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 विल गेट कैंसिल, 5
30, that means 1 by 30. 1 by 30. अब माइनस लेना है क्या नहीं लेना है? सी नो नीड, मॉड्यूलस इज देयर. अभी ये कंसंट्रेशन क्या है? दिस कंसंट्रेशन इज एसिडिक कंसंट्रेशन है बेसिक कंसंट्रेशन? ये तो कंसंट्रेशन है. विच कंसंट्रेशन है? इज इट एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर? तो देख के बता सकते हैं. सी अदरवाइज ये तो एसिड था, ये तो बेस था. Which value is done ready? Which value is higher? Base. Base value higher means the basic nature. So this concentration is base concentration. Whenever base concentration is there, we can calculate only first pOH, then pH. First we calculate pOH. pOH we can calculate in that case minus log 1 by 30. 1 by 30. 1 by 30 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ऐसे रहना. ठीक है, माइनस लॉग 1 माइनस और माइनस प्लस लॉग ए बाई बी इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी. ठीक है, सो लॉग 30 देन ये तो 0 हो जाएगा. log 30 को मैं 3 into 10 लिख सकते हैं. log a plus log b. log 10 equal to 1. 1 minus log 3. 1 minus log 3. log 2 का तो 0.3 था. log 2 का 0.3. log 3 का 0.3 से कुछ ज्यादा होगा. So approximately I am writing 0.4. Now approximately. So ये approximately 0.6. What is this? pOH. pOH. एक बार pOH पता है तो pH कर सकते. pH equal 14 minus pOH. 14 minus 0.6, that means 13 point. ओके, एसिड एंड बेस समझ गए आप. अभी तीसरा वाला सिमिलरली कर सकते हैं ना. इसमें तो एसिड इज डोमिनेटिंग, ये तो 100 ml था. ठीक है, अभी आने वाला आंसर pH, डायरेक्टली pH कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड. इसके पहले हम वीक एसिड करेंगे. फिफ्थ वीक एसिड CH3COOH का एक 0.1 m concentration. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन 10 power minus 6 m concentration. ये दोनों का वीक एसिड के लिए कंपलसरी K देते. ठीक है, K is given that equal to 1 into 10 power minus 5 वीक एसिड. चलो अभी concentration is given, K also given. ठीक है, हमको क्या चाहिए? एक्सप्रेस कंसंट्रेशन चाहिए. एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला C अल्फा. अभी अल्फा कैसे लेना है? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka by C. राइट, दिस इज वन फार्मूला. दूसरा ये कब है? वो अल्फा वैल्यू बहुत कम हो गई. ठीक है, दूसरा और एक था एक्चुअली फार्मूला इज Ka इक्वल C alpha square by 1 minus alpha. This was the formula, right? ये वैल्यू से हाइयर है. पहले ये लिखा था उल्टा, यही था. जस्ट यू चेक इट. K by C ये वैल्यू से
कम है तो 1 minus alpha we can consider as 1. सपोज ka/c वैल्यू ये वैल्यू से ज्यादा है तो 1 minus alpha as भी लेना पड़ेगा. ठीक है. नाउ जस्ट यू राइट दोस नोट पॉइंट्स. अभी सॉल्व करेंगे. हाँ, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा. अभी अल्फा इक्वल अंडर रूट ऑफ ka/c. तो ka/c अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है. देख सकते हैं फर्स्ट केस में क्या हो रहा है. फर्स्ट केस में ka/c वैल्यू रफ में कर सकते. ka/c वैल्यू 10 power minus 5 by 10 power minus 1 that equal 10 power minus 4. So less value is there. Less value is there means 1 minus alpha को हम 1 मान सकते हैं. 1 minus alpha को हम 1 मान सकते हैं. That means directly you can use this formula. वो 1 मानने के बाद ये फॉर्मूला गया ना, alpha equal. Then alpha equal under root of k. कितना था k? 10 power minus 5 by c. 10 power minus 1 that equal 10 power minus 4 that equal 10 power minus 2. Alpha हो गया. अभी H plus concentration equal to c into alpha. 0.1 into 10 power minus 2 that equal 10 power minus 3. Therefore pH equal to 3. Directly हम write pH equal to 3. किसका? 0.1 m एसिटिक एसिड का. अभी दूसरा क्वेश्चन है उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था? 10 पावर माइनस 6 m एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड pH equal. Then again formula H plus concentration equal to then C alpha. लेकिन अल्फा क्या लेना है? अभी डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ ka/c नहीं ले सकते. क्या लेना है? वो ka equal c alpha square by 1 minus alpha. ये फॉर्मूला लेना है. इसमें तो अल्फा पता नहीं. k वैल्यू 10 पावर माइनस 5. c तो दे दिया. C कितना था? 0.1 m concentration. Sorry, 10 power minus 6 concentration. Then alpha पता नहीं. Upon 1 minus 5 minus 10 power minus alpha minus 10 power minus 6 alpha square equal to 0. इधर लेते हैं तो माइनस से काम कर सकते और 10 पावर माइनस 5 भी कॉमन कर सकते हैं. सो देन ये होगा 1. ठीक, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पहले. ठीक है, दिस टर्म आई एम राइटिंग फर्स्ट 10 पावर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर. ये प्लस हो जाएगा अल्फा. दिस वन माइनस 1 होगा इक्वल टू 0. 1 by 10 हो जाएगा. 1 by 10 means the next step I can write alpha square plus 10 alpha minus 10 equal to 0. Then alpha कैलकुलेट करना है. alpha equal क्या होता है? minus b plus r minus under root b square minus 4ac by 2a. अभी इसमें minus b means 10 ना minus 10 then plus or minus under root b square is 100 minus 4 a means 1 c also 10 minus 10 that minus 10 by 2 a means 1. क्या होगा इसका? that equals minus 10 plus or minus under root 100 minus into minus plus हो गया 4 into 10 4 140 हो गया upon 2 minus 10 plus 11.9 something 140 under root 144 है तो
11.9 समथिंग हो जाएगा। यस 11.9 है तो सपोज then 1.9 by 2, so this value approximately 0.9, more than 0.9. Then you can substitute that H plus concentration 1 तो नहीं होगा, 1 से कम होगा, बस इतना ही, क्योंकि वो तो वीक एसिड। अल्फा इक्वल C इंटू अल्फा। C क्या था concentration 10 power minus 6 इंटू अल्फा 0.9, सेम आ गया आंसर। 9 into 10 power minus 7, 9 into 10 power minus 7, then the pH will be 7 minus log 9, that means again 6.2 something, 11.81. If you are taking 11.81, इतना होगा 20 variation means 19, 0.19. That means 1.81. ठीक है 1.81. So 1.81 means again by 2 0.9 हुई, approximate तो वैल्यू। ठीक है, ये कब है? वीक एसिड का दो कंडीशन है, एक तो Ka/C वैल्यू इज मोर देन 10 power minus 4 एंड लेस देन 10 power minus 4, वो टू कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है। सी वेरिएशन इतना है, इधर ये फार्मूला डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो रिमेनिंग भूल जाओ सर, इतना बड़ा है कुछ समझ नहीं आया, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओनली द वेरिएशन इज हियर। सो वैल्यू कम है तो वी आर टेकिंग डायरेक्ट अल्फा इक्वल अंडर Ka/C ले रहे, नहीं तो फिर ये दो फार्मूला में वेरिएशन कब क्या यूज करना ये समझ गए तो बस, ये रिमेनिंग पूरा याद रखने का कोई जरूरत नहीं।